خاکسار محمد شہزاد بلوچ روا کارما ضربی سے تعلق ہے۔ تمام دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ مختصر سے اپنا تعارف کرواتے چلے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا تعلق ربوہ دارالعلوم شریفی بے سے، آبائی تعلق سیالکوٹ سے، لیکن میں ارلی نکل گیا تھا رزق کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں، تو بچے ربوہ رہتے تھے اور جوانی کے عالم میں نکل گیا، مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا، اور اب پتہ لگا کہ بچے جوان ہو گئے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو بس یہ ہے سارا، الحمدللہ۔ چلو بچے نے دسیا جی السلام علیکم۔ جی میرا نام خالد شاہد ورک ہے اور میں ایک گاؤں کا رہنے والا پینڈو بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جماعت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس وقت زعیم بنڈ ووڈ کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ پورے یو کے کا خدام الانبیاء میں ناظم مومی بھی رہ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جماعت کا پریزیڈنٹ، ایڈیشنل سیکرٹری مال اور طریقے چیز اور وقفے چیز کے کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ بزنس میرا اپنا ہے جو کہ ماسنس ٹریول کے نام سے چل رہا ہے، اور یہاں پہ میرے 4 بچے ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ پڑھی گئی ہیں، اور ایک بچہ میرا جو انجینئر ہے، انسٹرکچر انجینئر پلس مینجمنٹ کی ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ اس نے اکنامکس میں کیا، گریجویشن کی ہے، اور سارے الحمدللہ جماعت کے ساتھ نہایت ہی مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں۔ 2 بیٹے میرے MTA میں والنٹیئر کام کرتے ہیں کہ ناٹ پیڈ، اور الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ ہر لحاظ سے بابرکت رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے سب آپ دعا کریں کہ اللہ میاں ہمیں ہمت دے کہ ہم سارے کام آسان طریقے سے کر سکیں۔ السلام علیکم۔ خاکسار کا نام فیصل منیر ہے۔ خاکسار پیدائشی احمدی ہے، اور الحمدللہ جسے کہنا چاہیے کہ ننیال سائڈ سے بھی اور ددیال سائڈ سے بھی ایک مخلص جماعت یعنی ممبران سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے 73 میں بہت ساری قربانیاں میرے نانا سائڈ نے بھی دیں، ان کی ساری ٹرانسپورٹ جلا دی گئی، اور میرے پیرنٹ سائڈ ہیں ان لوگوں کے سارے بزنسز جلا دیے گئے تھے۔ تو خاکسار کو پیرنٹس نے لائر بنایا، اور الحمدللہ جماعت کے کیسز بھی کنڈکٹ کیے، اور میں جسے کہنا تھا ینگسٹ لائر ہوں جو پیپر انٹرنل یونیورسٹی کا سیٹر بھی رہا، اور خدا نے مجھے لائف ممبرشپ آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف کی لائف ممبرشپ بھی عنایت کی۔ خاکسار کے بے شمار کیسز پاکستان لا ڈائجسٹ میں رپورٹڈ ہیں۔ پھر جماعت کی خدمت کے کیس کے سلسلے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں آخری کیس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہاں موو ہونا پڑا، اور یہاں پہ میں نے الحمدللہ اپنی جسے کہنا چاہیے یہاں کا بھی لائسنس لیا، اور یہاں پہ میری اپنی فرم ہے، اور اس میں امیگریشن اسائلم میں کام کر رہا ہوں۔ میرے بھی 4 بچے ہیں، دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ گرافکس انجینئرنگ ہے، اور بیٹے نے IT انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی یونی میں، وہ بھی IT پلس میتھ میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو خاکسار کی بھی یہاں پہ لا فرم ہے اپنی، اور خدا کی بہت عنایات ہیں، بہت فضل ہیں، جتنا شکر ادا کیا جائے، اور یہ سب کچھ جماعت کے صدقے ہے، ہم کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام ناصر احمد خان ہے، اور میں بھیرے کا رہنے والا ہوں، اور بھیرے میں جو گلی جو مسجد نور ہے اس خلیفہ اول کی ساری جائیداد کے بالکل سامنے میری والدین کا مکان تھا، اب ہم لوگ بیچ دی ہے، اور میری اپنی جو ہے میں نے سول اپنا
सिविल डिप्लोमा किया हुआ है और मैट्रिक पास हूँ। इसके अलावा 2 बच्चे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं और ये दोनों बच्चे मेरे अभी। और अगर पूरी तफसीर करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो देख लेते ही काफ़ी रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और मेजर महबूब साहब जो है मेरे हमदुल्फ भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार का नाम मेरे तहीम बख्श है। मेरा पाकिस्तान में जिला अटक तहसील पिंडी गए, वहाँ अकेला ही घर जो है वो 40-50 साल से अकेला ही वो घर था जमात पूरे उसकार में और शहर में। फिर मुझे खिदमत का जो मौका मिला वो 66 में मैं सेहत जिस्मानी खुदाम अहमदी में रहा। फिर सरगोदा में मैं मोतमद और नाज़म माल सेहत जिस्मानी ये 3 मेरे पास अहदे थे। जब हजूर ने तारीख की गोदाम सैकड़ों पर आए तो उस साल हमारी जो जमात है सरगोदा की वो फर्स्ट आई और फैसलाबाद सेकंड आई, क्योंकि हमारे जो है वो तजनीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इस लिहाज से सैकड़ों में हम जाकर रास्ते में लोग जो पूछते थे कि क्या आप सफाई कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, हम खुदाम अहमदिया के मेंबर हैं, तो हमारे इजलास से जब जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, वो लोग हैरान होते थे। तो उसके अलावा खिदमत का मौका फिर रावलपिंडी में मुझे उधर तबलीग से तो इस्लाह इरशाद कहते हैं, तो मैं अपना आमला में रहा रावलपिंडी के और इलाके के भी आमला में। फिर वो ख़त्म हुई तो उसकी मैं खिदमत में मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ पाकिस्तान का। और उसके अलावा हजूर के साथ खलीफा सालिस रहमुल्लाह का एक टूर था सोडी पेशाब से आगे, वो एक नशारा जगह है, तो वहाँ हजूर जो है वो काफ़िले के साथ गए, तो मुझे और मेरे कायद को जाने का मौका मिला। वहाँ हजूर जो है सबसे मैं छोटा था, तो मुझे वो अपनी वो स्टिक जो है वो पकड़ाते थे, तो मुझे इस लिहाज से भी बड़ी सादत नसीब हुई। फिर मुझे वहाँ वो छोटी सी जगह थी बरामदा में, अजान मुझे कहा अपने हमारे जो मिर्ज़ा साहब थे इलाकाई, वो हमारे अमीर थे मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब, उन्होंने कहा अजान दे। तो मुझे घबराहट हुई कि इतने बड़े पढ़े लिखे भी, मैंने तो अजान तो कहीं वैसे भी नहीं दी। दुरूद शरीफ पढ़ के मैंने अजान दी, कोई उसमें जिसे कहते हैं ना नुक्ताचीनी नहीं हुई। तो फिर मैंने जब वो नमाज होने डेढ़ सोचा कितने खुशकिस्मत हैं लोग जो हजूर पीछे हैं, तो मैं तो सारी ज़िंदगी कभी आगे मौके नहीं मिलेगा ना, मैं इतने बड़ा अहदेदार हूँ ना कोई इस लिहाज से। लेकिन जब वो खड़ी हुई जमात तो मैं आखिरी साफ में था, 3 सफ़े थी, मुझे ये नहीं पता चला कि एक ने मुझे पकड़ के आगे कर दे आगे जगह खाली। उसके बाद आगे जगह खाली तो मैं हजूर के पीछे वो चला गया और ये एक मौजज़ा वहाँ हुआ। और मेरा सजदा जो है हजूर की जानमाज़ बड़ी लंबी थी, उस पर सजदा होता था। उसके अलावा हजूर को जो है शाम को हमें बुलाते थे, मुझे और कायद साहब को, तो हम हजूर के पाँव दबाते थे, फिर हमें वो रेवड़ियाँ और ऐसी चीज़ें देते थे। कहने का मकसद है फिर मैं जब जर्मनी में आया तो 12 साल वैसे सदर जमात नेशनल में अंसारुल्लाह में नाज़म का कायद और तबलीग में जोनल सेक्रेटरी, हॉकी के मैं वहाँ कोच रहा, टीम बनाई खुदाम अहमदी की। और उसके अलावा जितने भी सदरान के आते थे ना खतूत माहाना रिपोर्ट, वो मुझे जमात अमीर साहब ने अलाउ किया था कि मेरे दस्तखतों से ही वो मैं खुद ही पढ़ता था, खुद ही जवाब देता था। तो इस तरह 4-5 अहदे जो है ना वहाँ थे। 80 बैठे मैंने एज ए जोनल सेक्रेटरी तब्दील कराए। हमारे सेक्रेटरी इमाम साहब के जो दामाद हैं ना मसूद, हमारे नेशनल सेक्रेटरी तब्दील थे। तो उसके अलावा फिर जब मैं इधर आया तो मुझे जमात अपर मिशन में जनरल सेक्रेटरी मैंने कोई 4 साल किया। फिर मैं वापस इधर आ गया बर्नपुर में, तो इधर भी मुझे मुख्तलिफ यानी एडिटर के तौर पर और मुहासिब के तौर पर ये डिग्रियाँ करने की तौफीक मिली। तो नेशनल आमला अंसारुल्लाह में 4 साल वो भी तौफीक मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसार का नाम हाजी शबीर अहमद है। मेरा तल्लक तो एक कस्बा है ज़िला सरगोदा में कोट मोहम्मद, वहाँ के हम रहने वाले थे। फिर रवा में कारोबार किया गुलशन स्वीट एंड बेकर के नाम से।
वहाँ पे फिर अल्लाह ने जमाती खिदमत की तौफीक दी। जई मुख्तार खुदाम अहमदिया लंबा अर्सा, फिर जब संतो तजारत का शोबा बना, सेक्रेटरी संतो तजारत रवा गालबन पहला मैं ही था रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर दफ्तर सदर अमूमी में अल्लाह ने तौफीक दी, तो 7-8 साल सेक्रेटरी मुरामा लोकल अंजमन अहमदिया रवा की तौफीक ही अल्लाह ताला ने दी। इसके अलावा यहाँ भी अल्लाह के फजल से अब तक तौफीक मिलती रहती है। जहाँ भी जमात की कहीं भी ज़रूरत हमें पड़े, हम इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर होते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से अपनी माल जान वक्त अपना पेश कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रब्बा में जी माशाल्लाह इनका नाम था कि जहाँ कहीं कोई मसला उलझता था तो इनको भेजा जाता था ये साल के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको खास ये मलका दिया था। लास्ट बारी मेरी जी लो जी, यहाँ ये महफिल चली है कि अपना अपना तारुफ कराएं। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, ना तो बंदा अपनी तारीफ कर सकता है ना अपनी बुराई। तो गालिब का एक शेर याद आ रहा है, वो कहता है पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएंगे। इतनी बेबसी होती है इंसान की अपना तारुफ कराते। कल हुजूर का जो खिताब था सबने सुना, बड़े गौर से सुना होगा। उसमें हुजूर ने फरमाया कि अगर नेकी से जन्नत मिलती, अल्लाह राजी होता, जन्नत से मुराद अल्लाह राजी है, तो बड़े नेक लोग हैं। अगर सदके से अल्लाह राजी होता तो बड़े लोग सदका देते हैं। जिहाद से राजी होता तो बड़े मुजाहिद हैं। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए जो उन्होंने फार्मूला बताया वो ये था कि अपनी अना को ख़त्म कर दिया। जब अना ख़त्म हो जाए तो फिर तारुफ पीछे क्या रह जाएगा। ख्वाहिश के उसके फजलों को थोड़ा सा शुमार कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आखिर को अल्लाह ताला ने खुद अहमियत की तौफीक बख्शी और ज़बरदस्ती बख्शी, बकौल मेरे कि जैसे गर्दन से मुझे पकड़ लिया और कहा कि उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक मेहंदी नहीं हो जाती, और जब तक मेहंदी नहीं हुआ मेरी गर्दन नहीं छोड़ी, और गर्दन छोड़ने के बाद उसने मेरी उंगली पकड़ी। एक दफ़ा हुजूर से बात हो रही थी, तो हुजूर ने मुझे रिमाइंड करवाया कि वो सुना हुआ ना आपने मेरी बात। मैंने कही कौन सी? तो मानने लगे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं वाली। दोस्त जानते होंगे अभी नहीं वाला कौन है, तो बता दूं। तो बुजुर्ग फौत होने लगे ना, तो वो कहने लगे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो जब फौत हो गए तो उनके करीब मरीज ने ख्वाब से मुझे पूछा ये क्या मामला था, हम तो बड़े शर्मिंदे हो रहे थे। वो कहने लगा शैतान आ गया था और वो कह रहा था आप तो बड़े कामयाब जा रहे हैं, मेरी दस्तक से बच के जा रहे हैं, मैं नाकाम हो गया हूँ। तो वो कहते जब तक मेरी जान नहीं निकलती उस वक्त तक मैं नहीं मुतमईन हो सकता। तो वो कह रहे थे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो मुझे हुजूर ने फरमाया कि अभी नहीं वाले मामले का पता है आपको? मैं कहा नहीं पता है मुझे, मगर जो खुदा मेरी उंगली पकड़ के मुझे घड़ों से पस्तियों से निकाल के यहाँ तक ले आया आपकी तरफ, तो क्या आप छोड़ देगा मुझे? तो हुजूर ने फरमाया कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैंने बेटे से बात की कि एकदम हुजूर ने अपना रवैया बदला कि कभी नहीं छोड़ेगा। कहते हुजूर को ये हदीस याद आ गई होगी कि जो बंदा खुदा के बारे में गुमान करता है ना, खुदा उसके साथ वही सलूक करता है। तो आखिर बाहर ये क्या अर्ज करें वाए उसके सामने पे। वालेकुम जी। जवेद साहब ने अपना तारुफ करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा। इनके बेटे जो है ना अबादुल्ला साहब, अच्छा, वो हमारी जो जमात है ना अंजुमन अहमदिया उनके मुख्तार आम है। अच्छा, और फ्रंट लाइन पे हमने इकट्ठे बड़ा काम किया, तो बड़े नाजुक मामलात में हर जगह शेरों की तरह आगे अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं जमात कामों के लिए ना। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तौफीक देता चला जाए। तो माशाल्लाह इनकी औलाद भी
नीचे नक्शे कपड़े चलती हुई तो चल रही है। मैं थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे इंसान है जवेद साहब भी तो माशाल्लाह। जी एक तहरीर नेमत के तौर पे जब हम रबा में आए तो क्योंकि मुझे किसी ने तबलीग नहीं की थी तो मुझे मशकूक करार दिया गया कि ये जासूस है, ये जासूस है और बड़ी तैयारी करके आया है, पकड़ाई नहीं दे रहा। तो आखिर के दिन में एक ड्यूटी लगी कंटीन की, फजले उमर कंटीन। तो किसी ने कहा कि आज इसको निकाल के देखो, सीधा अला यार के पास जाएगा, ठेका वापस लो। और ये जमात इस्लामी का एजेंट है, यहाँ आ गया। खैर बर्दाश्त किया मैंने। लंबा हो जाएगी बात तो नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आओ होन करो, पहले तारफ हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो, कुछ मामले हुए भी तो लोगों ने कहा कि दरख्त हल से पहचाना जाता है, इनकी औलाद जो है वो हमें ठीक नजर आ रही है। अगर ये है भी है ना, औलाद को संभाल लेंगे हम। तो फिर एक वक्त आया कि मुझे ना वक्फे जी में काम करने की तौफीक मिली, और आप हैरान होंगे कि जितने मौलमीन थे वक्फे जी के, मुझे वो सौंप दिए गए कि आपने इनकी निगरानी करनी। और जो बेटा है जिसने बताया आपने, तो जमात की जितनी प्रॉपर्टी है ना वो उसके नाम है, उसका आम है। मैंने जो आदमी मुझे मशकूक समझता था ना, मैंने उससे एक दिन कहा, मैं कहा देखो तुम शक करते थे, आज रूहानी मामला भी मेरे हवाले है और दुनिया भी मेरे बेटे के हवाले, और मेरे खानदान ने वो दोनों मामले संभाले हैं। अल्लाह अकबर।